Hello friends, hope you are doing good. You must have completed my all the lecture videos of kinematics in one dimension. If you have not watched yet, then do watch it from my channel, link given in the description. This lecture video is basically a test to understand whatever you have studied so far. देखो, कोई भी अगर एक मान लो क्रिकेट प्लेयर है, वो डेली प्रैक्टिस करता है, राइट? लेकिन वो प्रैक्टिस करता है किस दिन के लिए करता है? फॉर व्हाट डे? फॉर द फाइनल डे, मतलब जिस दिन एक्चुअल मैच होगा उसका, राइट? तो टिल नाउ वट एवर वी हैव स्टडीड इन काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन एंड वट एवर क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, द चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस और द सॉल्व्ड क्वेश्चंस, राइट? सो ऑल दोस क्वेश्चंस वेयर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, राइट? अब तुम लोग के लिए एक्चुअल डे ऑफ टेस्ट क्या होगा? इट विल बी आइदर जेई और नीट, राइट? तो अभी ये समझना जरूरी है कि वॉट एवर कंसेप्ट यू हैव गेन्ड सो फार, whether you are able to apply them in the questions that has been asked in the previous years of NEET and JEE. ठीक है? तो this lecture video is basically your test. So you have 7 questions of the last 2 years questions of JEE and NEET. Okay, so what you will do, you will first solve all the 7 questions whatever I have given, then all the solutions to all these 7 questions are given just after the questions are over. Okay, so you will not see the solution first you will try to solve all the 7 questions on your own. Okay, so let's see the questions. This is the first question from JEE Mains 2019. This question is from vectors. The question says, let magnitude of a1 vector be 3, magnitude of a2 vector equal to 5, and magnitude of a1 vector plus a2 vector equal to 5. Okay, then the value of 2 vector a1 plus 3 vector a2 dot product with 3a1 vector minus 2a2 vector is. These are the 4 options. Okay, so if you have studied this dot product of vectors, you will be able to solve this question very easily. Okay, right, now we will move on to next question. There's the second question which was asked on in JEE Mains 2019. A particle starts from origin O from rest and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Okay, identify all figures. This means there may be one option is correct or maybe there are more than one options. Okay, identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. A is acceleration, V is velocity, X is displacement and T is time. So they have given you basically, if you will see the first option, this is given acceleration time graph. Okay, this is position time graph or displacement time graph. This is velocity time graph and this is again displacement time graph. Okay, so there are 4 graphs, right? I have already taught you the graphs of be it displacement time or velocity time or acceleration time. So you know all these things, right? So it is just giving you one hint that it is moving with uniform acceleration. Okay, so from here onwards you will move backwards and you will see that which of the following given options are correct. Okay, so this is also easy question, you can just try on your own. So now let's move on to next question. This question is also from JEE Mains 2019. The position of a particle as a function of time is given as x of t equal to at plus bt square minus ct cube. This means they have given one equation where a, b and c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. Again a very easy question, you just try on your own. Okay, right. Fourth question is again from JEE Mains 2019. A particle is moving with a speed v equal to b root x, okay, along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t equal to tau. This is read as tau. Okay, this is also a unit of time, you can say. Assume that the particle is at origin at t equal to 0. Again a very easy question, just apply your brain how to move ahead. Okay, you will be able to solve this also. All these things have already been taught in my lecture videos. Everything is there. If you have studied it thoroughly, you will be able to solve these questions very easily. Okay, let's see the next question. The fifth question is from JEE Advanced 2018. Okay, two vectors a and b are defined as vector a equal to a I cap and vector b equal to a cos omega t I cap plus sin omega t j cap. So as of now I will just let you know one thing, don't confuse with the terms cos omega t or sin omega t. Just assume they are some
terms, okay, dependent on time t. So if we read it as cos omega t, it may be cos theta also, okay. So it is written as, in place of theta it is omega times t, so it is dependent on t. That's, you don't need to worry about these things, okay, because this is just a question of vectors. So a cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where a is a constant and omega, the value of omega is pi by 6 radians per second. This is the unit of omega basically. We will read these things later on, but as of for now, you just need to check on the terms, okay, because they just want to check your ability of vectors. Now what condition they have given is, if magnitude of vector a plus vector b is equal to square root of 3 multiplied by magnitude of a minus b vectors, okay, at time t equal to tau for the first time, means at time t equal to tau, at some time t, the condition is this, okay, then what is the value of tau in seconds? So what you need to do is, you simply move forward from this equation, whatever they have given. They have given you one condition, right, that this condition is valid at time t equal to tau. So when you will solve this equation, okay, and you will reach to some point, then you will be able to put the value of t and omega, and you can get the value of tau, okay. So this is also very easy, you just try, you will be able to solve this also. This is just to check your, vectors, understanding of vectors, right. The sixth question is from NEET to 2019. A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by a vector triangle PQR. Okay. So now don't get confused that we have not studied forces. Then how we can solve the question of this? How we can solve this question? No, this question is basically from vectors. Force is a vector quantity, right? So it is just asking you to see your concept. What is your concept behind the vectors? Okay, force is, just assume force is a vector quantity. You know this. So from here you can proceed. The velocity of the particle will, means this is the vector triangle that they have given. These are the three forces like this. One is RP vector, another is PQ vector, and the other one is QR vector. It is acting on the particle in this fashion. Okay. So now you need to understand, whenever there are different forces given in the vectors, whenever there are more than one vector, then what you need to do basically. Okay. So the velocity of particle will increase, decrease, remain constant, or change according to the smallest force QR. Just think and solve this question. This question is very easy, question of vector. Okay, right. And the last question from NEET 2019 is, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x, and with a constant velocity v2 with next equal distance. Equal distance means, and the next half is also x. The average velocity v is given by the relation. These are the four options given. Again, it's a very easy question. We have done so many questions related to average velocity, instantaneous velocity, and everything in our lecture videos, right? So it's very easy question. You can easily do it. Okay. So these were the 7 questions. From here on, the solutions will start. So you just need to first solve all the 7 questions on your own. Then you will check the solutions. Okay. Right. So now we will move on to the solution part. Now we will see the solutions of the 7 questions. Please, I request you, do not watch the solutions before you have at least tried solving all the questions once or twice. Okay, don't directly come to the solutions. Let us see. This is the solution to the first question. The question was, magnitude of A1 is 3, magnitude of A2 is 5, and magnitude of A1 plus A2 vectors are 5. The value of some dot product it is asking. So what it should come in your mind? It is simply asking for the dot product, right? So what you need to do, the property is A dot A equal to what? It is simply A magnitude of A times magnitude of A cos theta. So it becomes magnitude of A square, because same vectors, the angle between the same vectors will be 0 degrees. So cos 0 is 1. Okay. Now here it is asking the dot product of 2a1 vector plus 3a2 vector dot product with 3a1 vector minus 2a2 vector. So you will just apply the vector addition law here, multiplication. It is very simple, dot product. So it will become this term, the first term multiplied with 3a1, then again the first term will be multiplied with 2a2, right? Then again 3a2 will so if you multiply these things, you will get how much? First term will be 6a1 dot a1, then again minus, right, 4a1 dot a2. Then again what you will do? You will again multiply
this 3a2 with 3a1 dot product, and again 3a2 dot product with 2a2. So you will get plus 9a2 dot a1 and minus 6a2 dot a2. Okay, so a1 dot a1, as already said, it is magnitude of a square, so here it will be 6 magnitude of a1 square minus 6 magnitude of a2 square, and a1 dot a2 will be always equal to a2 dot a1. Okay, because the dot product is a scalar product, so angle between that theta, either it is a1 or a2 or a2 or a1, it remains same, right? It means either you are, suppose there are two vectors like this is a1 vector and this is a2 vector. Okay, and this angle is theta, the smaller angle between them. So you do a1 dot a2 or a2 dot a1, this theta will remain same, so cos theta will remain same. That is why a1 dot a2 is equal to a2 dot a1. Okay, so you will get this result, 6a1 square minus 6a2 square plus 5a1 dot a2, right? This is fine. Now you are already given these, the values, magnitude of a1 you know, magnitude of a2 you know, so these are clear, no problem. But how to calculate this a1 dot a2? You need to know the value of a1 dot a2. So a1 dot a2 means you need to know the value of theta, or you need to know the value of a1 dot a2. So from where you will get this value? You will get this value from this equation. They have already given you magnitude of a1 plus a2 is 5, right? So this one is also very easy. When I was teaching you this topic, you can see the reference here, vectors playlist. When I was teaching dot product, I had explained you these things. Okay, and we have solved this type of question also that time. So the solution is, again the property remains same. Any vector dot product with this with itself will give you magnitude of the vector whole square. Okay, so here if you assume that a1 plus a2 is one vector, if you assume, suppose x is equal to a1 vector plus a2 vector. Okay, so if you calculate x dot x, okay, so how much you will get? You will simply get magnitude of x square. So you need to use this property only. So that means a1 plus a2 magnitude whole square will be how much? It will be 25. Here it is, a magnitude of a1 plus a2 is equal to 5. So if you will square it, it will become 25. Okay, and you know this, that this magnitude of a1 plus a2 means magnitude of one vector square, this term. This is equal to what? This is dot product of the same vector with itself. Okay, so here it is a1 plus a2 vectors dot product with itself, a1 plus a2. Okay, so if you will do like this, then this is equal to 25, then again you apply the law, you simply keep on getting dot products, a1 dot a1 plus, so it becomes a1 square, then again a1 dot a2, so you get a1 dot a2, a2 dot a1, so you will get a2 dot a1, and again a2 dot a2 will give you a2 square. So you will solve this, you will get this equation, a1 square plus a2 square plus 2a1 dot a2 equal to 25. Now you know the value of magnitude of a1 and you know the value of magnitude of a2, right? So you put these values, so how much you will get? You will get 2a1 dot a2 equal to how much? 25 minus 9. How it will be 9? Magnitude of a1 is 3, so you put the value of 3, so 3 square is 9, and magnitude of a2 is 5, so you put magnitude of a2 5, it becomes 5 square 25. So 25 minus 9 minus 25, so the value is minus 9. So what is the value of a1 dot a2? a1 dot a2 value is minus 4.5, right? So if you have calculated this value, then you have reached your answer. You put the value of a1 dot a2 equal to minus 5 in this equation, and how much you will get? Just simply see. So you will get how much? It will be 6a1 square. Here you see this equation, 6a1 square means a1 you already know 3, so 6 into 9 minus 6 into 25 plus 5 into minus 4.5, that's the value we have got. So you just put the value, you will get value as how much? It will be minus 118.5. So correct option is the fourth option in that question. Okay, right. So we'll see the next solution. This is the solution to question 2. A particle starts from origin O from rest, that means initial velocity is 0, and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. That's fine. So what you need to do is, you know, if the particle moves with uniform acceleration a, okay, so you have the equation, you know this equation, x equal to displacement is given by x equal to ut plus half at square. Am I correct? Right. Now you already know that the particle starts from origin from rest. It starts from origin, and that too its initial velocity is 0. That means ut is 0. Okay, this term is 0.
this means what is the displacement is given by simply half at square. So that means x is directly proportional to what? Time square, right? And you already know the graph. If any physical quantity like x is dependent on time at the rate of change of square quantity t square, then the graph will be parabolic in nature. That means it will be something like this. If you plot the graph between x and t, right? We already know this. So this is a parabolic kind of graph, and if you see at t equal to 0, the value of x is how much? It is 0. Okay, then you know this thing. Then if you need to calculate velocity, velocity is what? Velocity is rate of change of displacement, or dx by dt. So if you will calculate dx by dt of this half at square, x is a function of time, right? X equal to half at square. So if you calculate this d by dt of 0.5 at square, so you will get the value of at. Now you see v is directly proportional to t in this case. So any physical quantity v in this case, if it is directly proportional to another quantity t, then it is a straight line. You already know this. This will be like this, passing through origin. If it is directly proportional to, because v equal to at, there is no other constant term, so it will be like this. It is a simple straight line, right? And acceleration a is dv by dt. So d of dt of at, so it equal to a. That means it is a constant, a straight line parallel to time axis. Okay, we have already seen these things in our graph. When I was teaching graph, you can still refer to my lecture, kinematics 1 dimension playlist. Okay, there you will find this lecture in my lecture 5, constant acceleration equations. There we have explained these things. So now you know all the three variations. Okay, now you coming back to the question, if you will see the graphs. Okay, so now when you know that acceleration was uniform, so you know the graph between a and t for a uniform acceleration. If this is a and this is horizontal t, then what the graph will be of uniform acceleration? It will be simply a straight line passing through any of the point of the constant value. Okay, and it will be parallel to time axis, right? So one of the graph is directly visible to you. We'll just come to the next slide. Just see. Yeah. So here one graph was this, the another graph was this, and this was the third graph. Okay, now see, if you will see the options, whatever they have given, this option you would have marked it instantly, because you already know the graph between constant acceleration and time. Okay, then coming backward, okay, you're doing back calculation. If you will see, as already calculated in the previous slide, velocity will be directly proportional to with time if the acceleration is uniform. That means the velocity time graph will look like something like this. It will be a straight line passing through origin, velocity and time. Okay, again backward calculating this from here to here, you get displacement. It is directly proportional to time square. That means this will be a graph of a parabolic in nature, right? Passing through origin, t equal to 0, x equal to 0. So if you will see the options, these three options are correct, whatever they have given. So what will be your answer? Your answer will be simply, the three correct option will be second option, which is A, B and D. So these three graphs are correct for this question. Okay, you please refer to my lecture 5 video. You'll be able to understand these graphs, right? Okay, so now we will see the next solution. This is solution to question number 3. The position of a particle as a function of time is given by some equation they have given, xt equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constant. When the particle acceleration attains 0 acceleration, then its velocity will be. It's a very simple question. You know, you remember, you just see my lecture video 4th, acceleration. Okay, there I have already told you how to calculate these things. I have given steps also. Okay, so if you are given the equation, I had taught you there two things, one with equation, another thing was with graph. So here they have already given you equation. तो अब ये और इजी बन जाता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है. इट इज सिंपली दे हैव गिवन यू द इक्वेशन फॉर पोजीशन. सो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. सो यू फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन यू नीड टू नो इट्स वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी निकालने में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार इक्वेशन को. तो dx by dt निकाल लो, v इक्वल टू dx by dt. ये पुट कर दो d by dt ऑफ at plus bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब. तो यू विल गेट हाउ मच? यू विल सिंपली गेट a plus 2bt minus 3ct स्क्वायर. ये वेलोसिटी हो गया. और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, dv by dt. तो dv by dt d by dt of a plus 2bt minus 3ct स्क्वायर, है ना? तो you differentiate it, you will get 2b minus 6ct. ये इक्वेशन आ गया. अब यही तो बोल रहा है ना कि when the particle attains 0 acceleration, that means a is
0। तो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो किससे, 0 से। तो जब 0 से इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से टाइम का वैल्यू, देखो b/3c, यही तो आएगा। अब इसी इक्वेशन को तुमको निकालना क्या है कि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उस टाइम पे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन तुमको मालूम था ना, यहाँ पे a+2bt, ये वाला देखो -3ct², राइट। तो यहाँ पे t का जगह पे b/3c पुट कर दो, तो बस कर दो v = a+2bt - 3ct² = a+2b × t, व्हाट इज t, b/3c, यहाँ रख दो। तो ये 2b² / 3c हो जाएगा माइनस 3c × t², व्हाट इज t², b²/9c²। तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट a+b² / 3c। वेरी इजी क्वेश्चन। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं भी अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, जाके मेरा लेक्चर वीडियो देख लेना, लेक्चर 4 ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is moving with speed v equal to b√x along positive x-axis. ठीक, calculate the speed of the particle at time t equal to tau. Assume that the particle is at origin at t equal to 0. ठीक है, अब बताओ, ऐसा तुमको क्वेश्चन दिखेगा तो तेरे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए। यहाँ पे तो तुमको कहीं भी तुमको हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या कुछ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता तो एक फॉर्मूला भी याद था, यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं, यहाँ तो सिंपल दिया हुआ है चीजें, है ना। और वो फिजिकल क्वांटिटीज में भी है, v और x। देखो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, पोजीशन। ठीक, तो यहाँ तेरे दिमाग में इंस्टेंटली आना चाहिए था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट लगने वाला है। ठीक है, नहीं तो तुम जाके अपना लेक्चर 2 देख लेना, हमारे लेक्चर वीडियो का प्लेलिस्ट, काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन प्लेलिस्ट का लेक्चर 2। ठीक है, उसके वीडियो में जाके देख लो, तुमको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा इस चीज में। ऐसा क्वेश्चन भी हम वहां पे बनाए हैं। तो बेसिकली करना क्या है, वेलोसिटी वेरीज विद पोजीशन एज v = b√x। ठीक, तो तुमको पता है ना कि v = क्या होता है, dx/dt होता है। तो dt को इधर ले आओ, इसको इंटरचेंज कर दो, तो dx/√x = b/dt। ठीक है, मतलब इस वाले इक्वेशन को देखो, इतना दूर ये जो इक्वेशन आया, यहाँ पे dt को इधर ले आओ और √x को इधर ले आओ। लाइक टर्म्स को इंटीग्रेशन करने के लिए लाइक टर्म्स को लाते हैं ना ऊपर से नीचे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाना है तो यहाँ पे लिमिट्स हमें पता होना चाहिए। तो अप्लाइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम t = 0, तो t = 0 पे पोजीशन का क्या था, वैल्यू। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ था ना कि assume that the particle is at origin at t = 0, t = 0 पे वो x = 0 था यानी। ठीक है, टू फाइनल लिमिट क्या लगाएंगे, टाइम का टाउ, यहाँ पे दिया हुआ ना, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = टाउ। ठीक है, तो t = टाउ पे तुम मान लो कि जो उसका पोजीशन होगा वो x ही होगा सपोज। ठीक, तो इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, बताओ, dx/√x इंटीग्रल ये t और इक्वल टू इंटीग्रल b/dt, जैसा यहाँ लिखा हुआ पहले। अब लिमिट लगाएंगे तो पहले लोअर लिमिट, तो t = 0, t = 0, यहाँ पे t = 0 पे x क्या था, 0 रख दो। और फाइनल लिमिट क्या लगाएं, टाउ। अब t = टाउ पे फाइनल पोजीशन क्या था, x, जो हम माने हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। अब dx/√x का तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता है करने, आराम से आता होगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x एंड dx क्या होता है बताओ, x⁴n+1/n+1। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये √x है, राइट। तो √x को बेसिकली तुम क्या लिख सकते हो, कोई बता सकता है, मतलब 1/√x है, सॉरी 1/√x है। तो 1/√x को क्या लिखोगे बताओ, x⁻(-1/2), तो तुम्हारा n क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम कैलकुलेट कर लो, तो वेरी इजी। खैर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2√x, और लिमिट्स क्या लगाओगे 0 से x, और इंटीग्रल dt क्या होता है, t होता है, और b कांस्टेंट था तो b को बाहर ले आए, तो bt 0 to टाउ। तो एक बार फाइनल वैल्यू डालेंगे, एक बार इनिशियल वैल्यू डालेंगे, तो जो कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, 2√x होगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार फाइनल वैल्यू पुट करो x, दूसरी बार 0, तो 0 जब पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा टर्म, तो सिंपली 2√x बचेगा। और इस साइड में टाइम में भी एक बार फाइनल वैल्यू पुट करो टाउ, इनिशियल वैल्यू 0 है तो वो भी सिर्फ t बचेगा, तो 2√x = b टाउ। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज हाउ मच, बताओ, यू विल गेट b², ठीक है, b² τ²/4। समझ गए, यही तो होगा इसका x का वैल्यू, है ना। तो वेलोसिटी एट t = टाउ विल बी हाउ मच, ये बताओ, ये तो यहीं पे दिया हुआ ना यार, v = b√x है, ये तो पता है तुमको। ठीक है, तो जब तुम निकाल लिए कि t = टाउ पे उसका वेलोसिटी कितना, उसका पोजीशन क्या है, t = टाउ पे उसका पोजीशन है x = b² τ²/4, तो इसी वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो सिंपल v = b टाइम्स हाउ मच, √x, तो √x का वैल्यू क्या था, √x का b टाउ/2 था,
तो उसको रख दो तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाई 2। वेरी सिंपल, समझ गए? दिस योर आंसर, तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 5। दिस वाज फ्रॉम जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन। ओके, सो इसीलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी दिख रहा है। एनीवेज ऐसा कुछ है नहीं, you just need to apply the property again. Two vectors a and b are defined as a vector equal to a I cap plus and vector b equal to a cos omega t I cap plus sin omega t j cap. पहले भी बताया था कि ये सब टर्म देके हड़बड़ाने का नहीं है कुछ भी, ठीक है? Where a is a constant and omega equal to pi by 6 radians per second. Omega is also constant here. अब एक कंडीशन दिया हुआ है कि magnitude of a plus b equal to √3 of magnitude of a minus b, ठीक है? और कोई टाइम है, टाइम t equal to tau पे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस यही टाइम का वैल्यू निकालना है कि ये कंडीशन है लेकिन तुमको दिया हुआ है, ठीक है? तो तेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये एकदम है ना दिमाग में डाल लो, एग्जाम में ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर वेक्टर से पूछा है तो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में और तुमसे क्या पूछेगा? कोई थोड़ी तुमसे बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, एंगल दे देगा, बोलेगा फाइंड ए डॉट बी। ये तुम्हारे स्कूल में पूछेगा, तुम जेईई और नीट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन पूछना, ठीक है? तो वो थोड़ा सा तो ट्विस्ट अराउंड करेगा तुमको, लेकिन इनमें कुछ है नहीं। तुम ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये हम अपने लेक्चर वीडियोस में बताए थे कि तुम जाके देख लेना, लेक्चर 5 वीडियो वेक्टर्स का, ठीक है? जहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन किए, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन भी बनवाए हैं हम, ठीक? यहाँ पे क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि एनी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 इज 1, ठीक? ये वेक्टर मालूम है हमको। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ था? √3 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। अभी अगर इसका हम स्क्वायर ले लें, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हम ले ही सकते हैं, मतलब ये पूरा को एक ही वेक्टर मान लो तो इसका पूरा का स्क्वायर हम ले सकते हैं, तो ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? √3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर, ठीक? अब इसी चीज को, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर, क्योंकि यहां से देखो यहीं से आ रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर है तो इट इज दैट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर a डॉट a, ठीक है? तो यहाँ पे हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ही एक कोई वेक्टर मान लो, x वेक्टर, तो सपोज x वेक्टर हो जाता है यहाँ पे x वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो क्या होता है? x वेक्टर डॉट x वेक्टर। अब x वेक्टर क्या माने थे तुम? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो उसको वहां रख दो, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट विद अगेन सेम वेक्टर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो अब तो बहुत ईजी हो गया, तो तुम इसको तुरंत इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन लगा के तुरंत इसको बना लोगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, तो ये क्या आएगा? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ठीक है? और इस साइड में क्या आएगा? 3 ब्रैकेट के अंदर a, ये देखो a डॉट, यहाँ पे a डॉट a माइनस a डॉट b, फिर माइनस b डॉट a और माइनस माइनस प्लस b डॉट b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट b, ठीक? इसको सॉल्व कर लो, b डॉट a इक्वल टू a डॉट b होता है, तो हमें मालूम है, ठीक है? तो इसको अब रीअरेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 8a डॉट b इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन तुमको मिल गया, ठीक है? अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब तुमको ये सब तो यही हुआ है ना भाई। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली वेक्टर a दिया हुआ है a I कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? a होगा, राइट? और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा? वेक्टर b कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ i एंड j, राइट? तो मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ i का जो कंपोनेंट है, मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी i और j कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो उसको लिख दो a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, वो x कंपोनेंट है a कॉस ओमेगा टी, और y कंपोनेंट क्या है? a साइन ओमेगा टी, तो उसका प्लस स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कॉस, तुमको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यही हम तो बताए थे ना कि इसमें हड़बड़ाना नहीं है, साइन के अंदर कुछ भी दिया हुआ है, थीटा ओमेगा टी एक्स वाई जेड व्हाटएवर, ठीक है? तो वो लेकिन सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर ऑफ व्हाट? ओमेगा टी और थीटा व्हाटएवर इट इज प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या थीटा, ठीक है? बस दोनों का टर्म सेम होना चाहिए अंदर का, कॉस के अंदर वाला का, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज आल्सो a, ठीक? ये यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब a डॉट b, ठीक है? a डॉट b करना है, तो क्या करोगे? a डॉट b यही तो निकालना है ना यार, ये निकालना है ना a डॉट b। तो a डॉट b करने के लिए भी तो तेरे पास दिया हुआ है ना, a वेक्टर फॉर्म में, b भी वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करेंगे? a डॉट b कर लो, तो a को लिख दो, वेक्टर क्या था? a I कैप, और वेक्टर b क्या है? a cos ओमेगा टी i कैप प्लस a sin ओमेगा टी j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लो आराम से,
डॉट प्रोडक्ट में सबसे मजेदार बात क्या है कि लाइक टर्म्स ही होते हैं, मतलब आई का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो, आई डॉट जे इज जीरो बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, ए डॉट बी इक्वल टू सिंपली कर लो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट जे 0 होगा, तो ए का आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विद दिस प्रोडक्ट ए साइन ओमेगा टी का जे कैप विल बी 0, ओके। सो ए डॉट बी इज ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी था। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब तुम्हारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है ये समझ लो। अब तुमको ए पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो ए, एंड ए डॉट बी का वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और तुमको वो इक्वेशन भी अपना मालूम था जो लास्ट में आया था, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 8 ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वहां सब वैल्यूज को रख दो, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा माइनस 8 ए डॉट बी ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी है, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इज ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो इसको रीअरेंज कर लो, तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये तुमको पता है ना, हाफ होता है, तो 60 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई हाउ मच, पाई 3, यानी कि कॉस पाई बाई 3 इसको हम लिख सकते हैं, राइट, तो यहाँ लिख लिए कॉस पाई बाई 3, ठीक है। और इस साइड क्या है, कॉस ओमेगा टी है, तो जब दोनों लाइक टर्म लिखा गया, मतलब ऐसा लिखा गया कॉस थीटा एक साइड है और इस साइड में कॉस ऑफ समथिंग, मतलब इस साइड मान लो कॉस ऑफ कुछ और है, फाई अगर हम कहते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से इक्वेशन जब लिख पाओगे तुम इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है, देन यू कैन कैंसल आउट कॉस कॉस, सो थीटा बिकम्स व्हाट, थीटा बिकम्स फाई, ठीक है। बाकी मैथ्स में और एडवांस पढ़ना पड़ता है कि इसका जनरल इक्वेशन होता है n पाई प्लस समथिंग, ठीक है, बट एनीवेज अभी तुमको जानने के लिए कॉस कॉस को हटा दो, थीटा इक्वल टू फाई के बराबर होगा जो दोनों के अंदर वाले टर्म्स है, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेट कर दो दोनों को, कॉस सिंस कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, तो ये कॉस और यहाँ वाला कॉस ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा टी इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू पाई बाई 3, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ था पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई टी, उस टाइम कितना दिया हुआ था उस समय, टी इक्वल टू टाउ दिया हुआ था, राइट, तो यहाँ पे टी इक्वल टू टाउ पुट कर दो, पाई बाई 6 इंटू टाउ इक्वल टू पाई बाई 3, तो यू सॉल्व दिस यू विल गेट टाउ इक्वल टू 2 सेकेंड। इजी क्वेश्चन, भले एडवांस में पूछा हो, तो एडवांस में पूछा तो एडवांस लाइक दिख भी रहा था ना कि तुमको इतना ऐसा चीज लिख दिया है कि तुम देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे कि करे क्या इसमें, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, था बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। यू प्लीज रेफर टू माय लेक्चर ऑन वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इट इज लेक्चर 5 इन वेक्टर्स प्लेलिस्ट, ठीक है, वहां पे तुमको ये सब चीज समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। A particle moving with velocity v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR, ठीक है, ये वेक्टर ट्रायंगल तुमको दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। अब यहाँ बताओ किसी के दिमाग में ये क्या आया होगा इसको सॉल्व करने के पहले कि ये वेक्टर ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे कि उससे वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा कुछ भी हमको। देखो किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, जैसे इस केस में वेलोसिटी चेंज कब करेगा, वेलोसिटी चेंज तब करेगा जब उसमें एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब नेट एक्सेलरेशन आने के लिए कुछ नेट फोर्स होना चाहिए, नॉन जीरो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तुमको किसी एक पार्टिकल पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो 3 फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटीज सो यू नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट। जब हम क्या बताए थे, एक से ज्यादा जब वेक्टर्स है, ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो आएगा, अगर रिजल्टेंट कुछ आ रहा है तो दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स अगर कुछ आ रहा है, इट इज नॉन जीरो अगर, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका वेलोसिटी फिर चेंज करता है, क्योंकि अगर नॉन जीरो फोर्स है रिजल्टेंट तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा, राइट। तो यही चीज दिमाग में आना चाहिए, है ना। और अगर रिजल्टेंट ही मान लो जीरो हो जाए तो ये नेट फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो नेट फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। चलो एनीवेज अब इसको समझते हैं हम। तो इसमें क्या है, यू ऑलरेडी नो द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है कोई भी, कैसा, अगर इस तरीके से मान लो कोई एक वेक्टर ए है, राइट, इस तरीके से वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी है, अरेंज फ्रॉम हेड टू टेल, याद है ना, ये टेल है ये हेड है, फिर दूसरा वेक्टर ये टेल है ये हेड है, ठीक है, टेल टू हेड अरेंज हो गया वेक्टर्स, ठीक है। और वो कर भी सकते हो चाहे वेक्टर्स कहीं भी हो, यू कैन मूव द वेक्टर्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक, तो वेक्टर रिमेन सेम। तो इस केस में इसका रिजल्टेंट जो होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ये होगा सिंपली सी, दिस इज द सी वेक्टर, राइट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली।
सो दिस इज ए प्लस, व्हाट इज सी वेक्टर, बेसिकली सी वेक्टर इज ए प्लस बी। और इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, इसका सी वेक्टर का जो टेल होगा वो पहले वेक्टर का टेल के साथ होगा, और इसका जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मैच करेगा। यही होता था, ठीक है। नाउ अब एक और दूसरा चीज समझो। अब दूसरा चीज ये है कि सपोज करो, जैसे इस क्वेश्चन में तुम देखते एक बार तो तुमको क्या दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर एक इस डायरेक्शन में, तो तुमको ये दिख रहा है कि साइक्लिक बन जा रहा है थोड़ा सा, मतलब ऐसे घुमा हुआ, एक दूसरे का, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे के टेल के साथ, फिर इसका टेल फर्स्ट के हेड थर्ड वाले के साथ टेल के साथ, राइट, ऐसे अटैच्ड है पूरा, तो ये साइक्लिकल बन जा रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम कैसे लगाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इफ सी इज रिवर्स इन डायरेक्शन, अब इसका क्या मतलब होता है भाई, कहने का मतलब है ये वाला चीज समझो, इफ सी इज रिवर्स इन डायरेक्शन, तो अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो एक कोई वेक्टर है ये सी, ठीक है, तो इसका अगर हमको डायरेक्शन रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। अगर इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो रिवर्स हो गया डायरेक्शन, और तो क्या लिखते हैं, माइनस सी वेक्टर। अगर पहले ये सी वेक्टर था तो ये बाद में क्या बन जाएगा, माइनस सी वेक्टर, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए 180 डिग्री से। तो ये तो पता है, ये तो समझाया है सब चीज। नहीं अगर मालूम है किसी को तो प्लीज गो थ्रू वेक्टर प्लेलिस्ट लेक्चर 1, इसमें बहुत अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एनीवेज, तो इट बिकम्स माइनस सी एंड वेक्टर एडिशन विल गिव यू हाउ मच, अगेन a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। यही तो होगा ना जब उसको रिवर्स कर दिए तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, देखो अगर फिगर में देखोगे तो फिगर में क्या हो रहा है, अगर सी को हम रिवर्स कर दिए, ऐसा कर दिए, तो ये इट बिकम्स माइनस सी, तो इसका हेड अब इधर आ जाएगा और इसका टेल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उल्टा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड इसका हेड था, इस साइड टेल था, और माइनस ही कर देंगे तो ये पलट गया वेक्टर, तो इसका हेड इधर आ गया और इसका टेल इधर आ गया। तो अब ये देखो थोड़ा साइक्लिकल टाइप का दिख रहा है ना, मतलब ए वेक्टर का टेल हेड, फिर बी वेक्टर का टेल हेड, तो बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड के साथ यहाँ पे है, ठीक है, फिर बी वेक्टर का हेड जो है वो सी वेक्टर के टेल के साथ है, और माइनस सी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर के टेल के साथ है, तो ये साइक्लिकल बन गया। तो इस केस में ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस सी, सिंपल, ठीक है। तो अगर इसको सी को इधर ले आएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको ऐसे भी याद रहना चाहिए कि कोई भी अगर साइक्लिकल वेक्टर बन रहा है, साइक्लिक इन नेचर इस तरीके से, ठीक है, क्लोज्ड फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा इट विल बी ऑलवेज 0। वो 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स विल बी हाउ मच, इट विल बी सिंपली 0, ठीक। तो इस केस में अब इस वाले फिगर को देखो, यहाँ पे भी साइक्लिकल है, तो आरपी वेक्टर ये प्लस पीक्यू वेक्टर ये एंड प्लस क्यू आर वेक्टर ये, तो ये चूंकि इस तरीके से अरेंज है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज इज हाउ मच, 0। तो देयरफॉर देयर विल बी no effect on the velocity of the particle because there will be no net acceleration because forces are 0, net force acting on the object is 0, तो acceleration is 0, तो there will be no change in velocity। तो correct option is 3, ठीक है, समझ गए, इजी क्वेश्चन था ये भी वेक्टर्स का। देखो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का बात है भाई, और इसीलिए जब देखे होगे जब हम वेक्टर्स भी पढ़ा रहे थे या फॉर दैट मैटर पूरा काइनेमेटिक्स भी पढ़ाया तुमको, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो एग्जाम्स होते हैं, नीट हो जेई हो, ये सब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को लेके खेलेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ के तुमसे क्या करेगा यार, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा निकलवा के तुमसे क्या कर लेगा, कुछ पता नहीं चलेगा उससे। लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा दो, अप्लाई करवाओ लोगों से, तब तो ब्रेन अप्लाई करना सीखोगे। इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे तो तुमको क्या अप्लाई करना, वहां जरूरत क्या है, वहां पे ब्रेन अप्लाई करना है। जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन खोजना है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, कोई बच्चा वाला तो प्रॉब्लम नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, 2+3=5 तो नहीं पूछेगा, है ना, वहां कुछ और दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx इक्वल टू फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो यू नो इस तरीके से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, जस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तुमको वो प्रिपेयर करवा रहे हैं अभी से। अब कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, आदमी तो एज इट इज खड़ा है, अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो देख के समझना पड़ेगा ना, लॉजिकली सब चीज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा हर चीजों को, तब तो वो डॉक्टर सही डॉक्टर बनेगा ना, ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर भी ऐसा बनोगे कि छुरी चम्मच पेट के अंदर छूट रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो इसलिए तुम लॉजिकली सोचो कि कैसे अप्लाई होगा चीजें, क्योंकि ये सब एग्जाम से वो तुमसे सिर्फ एप्लीकेशन का क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने अपना ब्रेन कितना ज्यादा अप्लाई किया। जेई मेंस में कुछ लेवल तक कराएंगे, जेई एडवांस में और ज्यादा एडवांस रूप से अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आईआईटी हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड, राइट। चलो एनीवेज, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
So this is a solution to the last question. This was a very easy question which was asked by NEET. Kinematics: a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी। तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, ये तो सबसे बन गया होगा। एनीवेज, अगर किसी को डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज रेफर टू माय लेक्चर वीडियो हियर गिवन हियर, काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन प्लेलिस्ट। ओके, दिस इज द लेक्चर 1। ठीक, बहुत इजी है, मैं कुछ नहीं करना है। लेट द टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट हाफ बी t1 एंड सेकंड हाफ बी t2। उसमें दो हाफ में जा रहा है ना, बताया ना, एक ये फर्स्ट हाफ है मान लो, और के बाद अगेन इक्वल डिस्टेंस ये है तो ये x है और ये भी x है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। एनीवेज, तो t1 इक्वल टू x बाई v1, क्यों तो बोल ही रहा है ना, v1 कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो t1 इक्वल टू x बाई v1 एंड t2 क्या होगा x बाई v2, क्योंकि x है और v2 कांस्टेंट है अगेन। तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, तो उसको सॉल्व कर लो, x बाई v1 प्लस x बाई v2 इक्वल टू x v1 प्लस v2 बाई v1 v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे कितना हो रहा है इसका x प्लस x इज 2x डिवाइड बाई t, तो सबका वैल्यू रख दो 2x v1 v2 बाई x इंटू v1 प्लस v2। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, लेकिन तुमको ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, अब उसको अरेंज करो उस तरीके से। तो अरेंज कैसे करोगे, एकदम डायरेक्टली भी नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया तुमको यही करके। तो ये क्या करोगे, 1 बाई बी कर लो, इसको रेसिप्रोकल निकाल लो, तो v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2, इसको रीअरेंज कर लो अच्छे से, तो ये क्या आ जाएगा, you will get 2 by v equal to 1 by v1 plus 1 by v2. So the correct option is what? The correct option is fourth option. ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको तो समझाने का कोई जरूरत भी नहीं था। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना कि तुम लोगों का ये 7 क्वेश्चंस में कितना सही हुआ। ठीक है, मुझे भी पता चलता रहना चाहिए ना कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे थे उससे तुम लोग में कितना इम्पैक्ट आया, तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसे हम तुमको बता दें इस 7 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो सबसे बन जाना चाहिए था। ठीक है, 5-6 तो आराम से बनेगा, मतलब वो जेई एडवांस वाला एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन तो आराम से बनने लायक था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी था। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज मेरे लेक्चर वीडियोस को जाके देख लेना, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है चीजें, उसका सॉल्व योर क्वेश्चन या चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन जितने भी है उन सबको अच्छे से समझो, तुमको ये सब चीज मिल जाएगा वहां पे, सब चीज दिया हुआ है, था कुछ भी चीज नहीं है जो मिसिंग था। ठीक है, तो ये चीज तुम हमको जरूर बताना कि तुम्हारा इसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन चैप्टर। ठीक, ओनली थिंग लेफ्ट इज the solution to unsolved questions of the my last lecture video free fall acceleration, that will come in next video lecture. ठीक है, and after that we will proceed to kinematics in 2 and 3 dimension, right, है ना। अब तुम्हारा काम ये है कि what you will do, you will start practicing questions of previous years JEE और NEET। ठीक है, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट 10 years 15 years का आराम से बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, अब जो भी तुमको पुराने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको सॉल्व करके ये देखो कि तुमको प्रॉब्लम कहीं आ रहा है क्या, अगर कंसेप्चुअली तुमको कहीं प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ और जानना है, देन कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क योर डाउट आल्सो, आई विल क्लैरिफाई यू, अपना ईमेल आईडी भी दे देना, आई विल जस्ट क्लैरिफाई यू। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल सॉल्व योर कंसेप्ट्स, आई विल लेट यू नो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइव वेरी सून, टिल देन हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, बाय।